Good morning, everyone. Good Good morning. morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। तो एक्टिविटी 4 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे और हमें यस सर। एक्सप्लेन करना है, रेस्ट और मोशन के बारे में डिस्कस करना है। बोर्ड दिखाई दे रहा है? बोर्ड विजिबल है? सर क्लियर Yes. सर थोड़ा ब्लड है। हैं? तो यहाँ पे नो सर क्लियर है। एक मिनट रुकिए। ज्वाइन ही कर रहा है और अब शायद स्नैप होमवर्क सही हो चुका है, इसलिए सारे बच्चे ज्वाइन कर रहा है। चलो, तो रेस्ट एंड मोशन में जो है मैंने बताया कि कोई इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its immediate surrounding, उसका जो आसपास में जो उस समय में जो है उसके अबाउट अगर उसका पोजीशन चेंज करेगा तो वो मोशन में कर रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its immediate surrounding, that objects are said to be in rest, तो हम लोग क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। क्लियर? हैव यू एनी Yes, प्रॉब्लम्स? sir. नो सर। sir. नो सर। सुनाई दे रहा है? यस Yes, सर। sir. तो आप ये पूरा चीज, इससे पहले एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है ऋतिक राज? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ व्हाट इज Sir, द? meter. यस, इससे पूछा जाएगा वही। तेजस्वी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? मास का एसआई यूनिट क्या है? यानी नहीं पढ़ते हैं आप, है ना? तेजस्वी सुनाई दे रहा है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? Yes, sir. सर एक बार फिर से बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा था। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। यस, सर किलोग्राम। हाँ, तो ये जवाब केवल एक ही आदमी देना ठीक नहीं ना है जी। अमरदीप सर इन दिस कंडीशंस क्या हुआ? कौन सा बात? तो यहाँ पे एक मिनट। यस। एक मिनट। हाँ, तो रेस्ट एंड मोशन को जो है आप पृथ्वी, उसको रीडिंग दो एक बार। तो पृथ्वी संगम Yes. रीडिंग दो। Yes, sir. Yes, sir. Measurements of two different physical quantities are necessary to find the positions of an object at different intervals of time. When we look around us, we find a number of things. There are chairs, tables, beds, kitchen utensils, water buckets, and a number of other things in our houses. There are other houses in the neighborhood, and
and also many trees and plants nearby. We often see many animals, birds, cycles, motor vehicles, buses, trains, and aeroplanes around us. We can, of course, add many more things to this list. Do we observe any basic difference in the variety of things around us? We find that many of them are where they were yesterday, or day before yesterday, or even before that. There are others which keep on changing their position even while we are looking at them. We can say that the first type of object are the rest, while the second type of objects are in motion. How do we decide whether an object is in motion or is at rest? It is the change in the position of an object with respect to its surroundings which helps us to decide whether a given object is at rest or is in motion. We say that an object is at rest if it does not change its position with respect to its immediate surroundings. An object is in motion if it keeps on changing its position with respect to its immediate surroundings. The change in the position of an object can be determined through distance and time measurements. This allows us to decide how fast and slow a given motion is. We often need to specify the position of an object at different times. Consider the motion of a toy car along a straight line. Choose point O as the point from where the toy car started moving. Example, the car was at point O at the start. Example, T equal to 0 s seconds. Let P, Q, R and S represent the Okay, positions of the wait, toy wait. car रुक after जाओ. different intervals of time. तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है कि जीरो गाड़ी एट रेस्ट का टाइम दिया है 0 सेकेंड. कार क्या है, रेस्ट में है. ओके, तो इस जगह आप देख रहे हैं कि कार जो है वो एट रेस्ट पोजीशन में है, 0 सेकेंड है. और वेयर आफ्टर 5 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर. ठीक है, 10 सेकेंड के बाद वह क्या हो गया, 15 मीटर दूरी तय किया. तो 15 सेकेंड के बाद 20 मीटर और 20 सेकेंड के बाद 25 मीटर. इट मीन्स कार पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स immediate surrounding. So that objects are said to be, that means car is in motion. कार क्या है, मोशन में है. ओके, क्लियर. तो Yes, यहाँ sir. पे इस पेज में, पेज नंबर 91 में आपको रेस्ट और मोशन दोनों चीज को डिफाइन किया है कि व्हाट डू मीन बाय रेस्ट, व्हाट डू मीन बाय मोशन. तो इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its immediate surrounding, then objects are said to be in motion. If an object does not change its position with respect to its immediate surrounding, then objects are said to be in rest. Yes. ओके, तो ये चीज पेज नंबर 91 में एक्सप्लेन कर दिया है. चलो 92 पेज नंबर को रीडिंग देना है तेजस्वी को. तेजस्वी रीडिंग Yes, दो. sir. In the first 5s interval, the car moves from O to P. The distance covered is 5m in 5s. In the second 5s interval, the car moves from P to Q. The distance covered is now 10m. In these 5s, we can therefore say that यहाँ एम the को मीटर car's बोला जाएगा. period
और 5s को सेकेंड बोलना है, ठीक है? Okay, sir. से बोलो, We can. शुरू से Okay, from the sir. beginning. In the first 5-second interval, the car moves from to बोलते जाओ। P. The distance covered is 5 meters in 5 seconds. In the second 5-second interval, the car moves from P to Q. The distance covered is now 10 meters in these 5 seconds. We can therefore say that the car speeded up in the time interval from 5 seconds to 10 seconds. Try to describe motion of the car in the time interval from 10 seconds to 20 seconds. Was the car moving faster or slowing down? फास्टर हो रहा है, यहाँ पर मूव स्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कार जो है उसका स्पीड हर एक 5 सेकेंड पर वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो रहा है, फास्टर हो रहा है, ठीक है? स्लो कब होगा? कि टाइम इंटरवल बढ़ेगा और डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, तो वह आपको स्लोअर होता जाएगा। जैसे देखो 0 से 5 सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 5 मीटर ही ट्रेवल किया। बीच में स्पीड फास्ट हो गया था किस केस में? 5 to 10 सेकेंड, यानी जो 5 to 15 मीटर यानी ओनली 5 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल किया, उस समय में स्पीड फास्ट था, और फिर ईच एंड एवरी 5 सेकेंड वो 5 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। एक समय वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। वो फास्ट किस सेकेंड में हुआ? पी टू क्यू, पी क्यू जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस सेकेंड में 5 सेकेंड के इंटरवल में वो 10 मीटर ट्रेवल कर लिया, ठीक है? तो वह इसके कंपैरिजन में क्या है, फास्ट में है। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? नेक्स्ट, Yes, Yes, sir. sir. तो आपने डू यू नो, है ना ऋतिक राज? ऋतिक राज, आर यू लिस्टिंग? Yes, sir. पढ़ो, डू यू नो को पढ़ो। It is important to realize that the same object may be regarded as being at rest by one observer and as being in motion by another observer. Thus, if two friends are seated near each other in a train compartment, each may think of the other as being at rest with respect of her or him. However, they will both be regarded as being in motion by a person standing outside of the platform. Thus, the decision about a given object's state of rest or motion depends very much on the observer and the surroundings chosen. ओके, तो कहता है कि आप देखते होंगे कोई भी स्टूडेंट किसी टीचर के नज़र में वो बहुत अच्छे हैं, वही अदर टीचर के नज़र में वो बहुत ही गंदे भी हो सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि मान लो कि आप इंग्लिश वाले सर के कंपैरिजन में आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन वहीं पर मैथ वाले सर के नज़र में आप क्या हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको मैथ नहीं आता हो, है ना, लेकिन इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो। तो ये उसी तरह से ये हम ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी कार मूव कर रहा है, उसमें जो बैठे हुए पैसेंजर है या जो भी ड्राइवर है, जो भी आदमी है, वो एक दूसरे को देख रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या समझ रहा है, रेस्ट में है। वो दूसरे को क्या समझ रहा है, रेस्ट में। लेकिन बाहर वाले आदमी के कंपैरिजन में वो क्या है, मोशन है। चीज वही है, फर्क क्या है, दो आदमी एक कार में बैठा हुआ है, वह एक दूसरे को देख रहा है तो वह रेस्ट में दिख रहा है, और दूसरा
जो है बाहर से जो देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है, ये मोशन में। तो यहाँ पर देखने का जो नजरिया है कि किसी को पॉजिटिव थिंकिंग समझ में आएगा और किसी को निगेटिव, वो तो अलग सोच है। यहाँ साइंस क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट और इन मोशन, ये टू डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए टू डिफरेंट आइडिया आया, जबकि साइंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो फैक्ट्स पे है। तो वहां पर क्या है, सराउंडिंग बदल चुका है। कार में बैठा हुआ आदमी जिस स्पीड से जा रहा है, वह एक दूसरे को देख रहा है, वह भी उसी स्पीड में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए रेस्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन बाहर का आदमी जो है वह रेस्ट में है और कार जो है मूविंग में है, इसलिए उसको क्या दिखाई दे रहा है, मोशन में। आपको मालूम होनी चाहिए कि अर्थ मूव करता है अराउंड द सन, ये मालूम है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी अर्थ मूव कर रहा है तो हमारे घर का डोर विंडो इसका भी डायरेक्शन बदल जाना चाहिए ना जी, क्योंकि इसका मतलब ये है अर्थ मूव कर रहा है तो उस पर जितनी भी चीजें होगी वो वही मूव करेगा ना जी। कार मूव कर रहा है तो कार में बैठा हुआ आदमी सारे का सारा कार मूव करेगा ना। तो फिर हमें एक दूसरे को देखते हैं कि रेस्ट में है कार, ये डोर जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में है। उसके पीछे रीजन बिहाइंड क्या है कि जो अर्थ जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में डोर भी मूव कर रहा है, आप भी मूव कर रहे हैं, आपका भी स्पीड वही है जो अर्थ का स्पीड है, इसीलिए हमें रेस्ट फीलिंग हो। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी जो है का कंसेप्ट है तो हम कंपेयर करेंगे किसके रिस्पेक्ट में। आपके स्कूल में कोई बच्चा या आपके क्लास में टॉपर है, वो सबसे अच्छा मार्क्स लाया, लेकिन वही दूसरे सेक्शन में मान लीजिए कि 100 में 98 लाया आपके सेक्शन में कोई बच्चा, और दूसरे सेक्शन में 99 लाया, तो आपके क्लास के लिए तो वो टॉपर है, लेकिन दूसरे सेक्शन के कंपैरिजन में वो टॉपर नहीं है। दिस इज यहाँ पर टर्म कौन सा लगेगा, रिलेटिव टर्म। जब हम किसके कंपैरिजन बात कर रहे हैं, आप अपनी क्लास के कंपैरिजन में वो क्या है, वह टॉपर था, लेकिन दूसरे सेक्शन के कंपैरिजन में वो टॉपर नहीं रहा, है ना। तो ये रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म्स है। किसी चीज के रिस्पेक्ट में वो मोशन में होगा और किसी चीज के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, रेस्ट में भी हो सकता है। जैसे दो बाइक राइडर्स या बाइसिकल राइडर्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, सेम स्पीड से जा रहा हो, एक दूसरे को देखेगा तो क्या दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। एक सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो क्या दिखाई देगा, रेस्ट में। लेकिन वही सेम स्पीड से बट इन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा तो उसको क्या दिखाई देगा, डबल स्पीड से वो जा रहा है। एक दूसरे को अगर देखेगा है ना तो वह डबल स्पीड से जा रहा है, यानी मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स। समझ में आया कुछ? यस सर। Yes, sir. है ना कि एक ही स्टूडेंट किसी टीचर के नजर में अच्छे होंगे तो किसी अदर टीचर के उस समय में हो सकता है बदमाशी करता होगा, कभी कभी वो ईगो पैदा कर लेता है ना। तो कि हम बहुत अच्छे हैं फलाने मैडम के कंपैरिजन में, तो हम इसके में जा, तो वहां पे ये एक रिलेटिव टर्म्स है। क्लियर? यस सर। एक्टिविटी 6, जयंत कुमार, पढ़ता लिखता नहीं है जयंत कुमार, लेकिन क्लास बड़ी रेगुलरली अटेंड करता है ना। जयंत कुमार, Yes, तुमने sir. एक प्रोजेक्ट बनाया, Yes, sir. दिखाया, Yes, sir. दिखाए थे एक्सप्लेन किया था, सर, दिखाए थे, एक्सप्लेन नहीं किए थे तो आज कर देगा। सर। कहीं रख दिए सर, नहीं मिल रहा है, आपको दिखाए थे सर। तो फेंक दिया उसको। नो सर, कहीं रख दिए सर।
तो मिलने वाला नहीं है, सर बनाए हैं सर। मिलने वाला है। सर ढूंढना पड़ेगा अभी। बाप रे बाप, यानी जानू में फेंक दिया उसको है? कहाँ फेंक दिया? सर फेंके नहीं है सर। अच्छा, तो कल ढूंढ के लाएगा और एक्सप्लेन करेगा। ओके। ओके सर। यस सर। शशांक शेखर, वेयर इज शशांक शेखर? क्या है दिक्कत? वीडियो ऑन करो शशांक शेखर। यस सर। वीडियो ऑन किया? सर जो प्रोजेक्ट वर्क दिए हैं उसमें हम लोग को मार्क्स मिलेगा? यस, मार्क्स मिलेगा। अपने म्यूट भी हो जाता है, तो भाग भी जाता है। क्या करिश्मा है तुम्हारा है? ऋतिक राज प्रोजेक्ट बनाया? ऋतिक राज, आर यू लिस्निंग? यस सर। बना लिया? सर बनाया और टूट भी गया। टूट भी गया? वाह, क्या गजब का बच्चा है तुम। बहाना बनाने के लिए और कुछ नहीं मिलता है। नहीं, सर टूट गया। फिर से बनाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेगा। बना के कल एक्सप्लेन करना है। तुम बहुत झूठ बोलता है ना? सर झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो फेंक क्यों दिया, तोड़ क्यों दिया? तुमने दिखाया था। सर टूट गया। नो सर दिखाए नहीं थे, सर कल ही तो बनाए थे। शशांक शेखर, तुमने बनाया? यस सर, सर हम दिखाए भी थे सर, मेरा ही तो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और दूसरा नहीं बनाया? दूसरा भी बनाया था, है ना? चलो एक्टिविटी 6 पर आओ शशांक शेखर। एक्टिविटी 6 पर होगे शशांक शेखर। इसको भगा दे। चलो जी, जयंत कुमार। यस सर। एक्टिविटी 6 पर हो। Okay, sir. Look at the list of the objects given below. Select from the 5 objects that are often regarded as being at rest and 5 other objects that are often regarded as being in motion. Mountain, street light, poles, butterfly, metro rail, table, leaf on a tree, fish on a water, the hand of clock wall, the moon, hockey player playing a hockey match, house, picture handling on a wall, the beach in a garden, a flower pot, a falling raindrops. सर हो गया। तो आपने बना ले क्या हुआ? सर, बना ले इसको भी। हाँ, तो तुम्हें कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो गिवन नेम ऑफ थिंग्स है दिया हुआ, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन से ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो आप उसको बनाओ, अभी कॉपी में बनाओ। अवानी चित्रा बनाओ अभी। उसको बनाना है। अवानी चित्रा कॉपी में बनाओ। मेट्रो रेल क्या होगा सर? मेट्रो रेल रेस्ट में होगा ना? मेट्रो रेल रेस्ट में ना? मोशन में ना होगा। ट्रेन रुकता है कि चलता रहता है जी? ट्रेन रुकता है? रेल है सर। है? सर ट्रेन नहीं है, मेट्रो रेल है, रेल। हाँ, रेल रेल मेट्रो ट्रेन ही हुआ, समझा? सेंस समझो। ट्रेन और रेल एक ही चीज होती है।
रेल को ही ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश समझ में आ गया। रेल को ही ना ट्रेन कहते हैं। ये दो चिड़िया का नाम है पृथ्वी संगम। यस सर। रेल और ट्रेन में क्या फर्क है? सर दोनों एक ही होता है। तो और यह विज्ञान को दो डिफरेंट थिंग्स लग रहा है कि रेल एक अलग चिड़िया है, ट्रेन एक अलग चिड़िया है। क्या सर हो मिस्टर गया। हो गया? चलो यस रेस्ट सर। में कौन कौन ऑब्जेक्ट डाला बताओ। माउंटेन, स्ट्रीट लाइट पोल्स, टेबल्स, हाँ, और हैंड्स सर, हैं? a flower pot, bench हाँ in a garden, picture hanging on a wall. हाँ, हाउस भी होगा ना। Yes sir. Houses. ठीक है, ये हो गया रेस्ट। और मोशन, अवानी चित्रा, वेयर आर यू? सर मोशन में होगा मेट्रो तुम रेल अब चुप हो जाओ, तुम फॉलिंग। चुप हो जाओ। यस सर। ऋतिक राज बताओ कौन कौन मोशन में है? सर नहीं लिखे अभी। तू सबसे स्लो लिखता है, लिखता ही नहीं होगा। कॉपी दिखाओ तो क्या सा लिखा। भाग गया। वो तो दिखा नहीं रखी है। दिखा दिया। आदित्य, अंकिता घोष, अंकिता घोष, आर यू लिस्निंग? अंकिता घोष सो गई है। यस सर। वीडियो ऑन करो। कहाँ लिखी है दिखाओ। यस कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? कौन लिख रहे हैं अभी। तब इतना देर से सोई हुई थी। घर का मतलब सोना। What? शशांक लिख लिया। सर थोड़ा सा और है। भाई कॉस्ट्यूम का तो एकदम व्हाइट बोर्ड दिखते रहता है। वाह। और ये पृथ्वी संगम लिख ली है। यस सर। दिखाओ। ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। कॉपी दिखाओ। माउंटेन। यस सर दिखा रहे हैं। तू तो किताब में बनाई है जी, कॉपी में नहीं बनाना था। राइटिंग प्रैक्टिस करना है, टाइम का सेव करती हो तुम। किताब में दिखाना है पृथ्वी संगम। ओके सर। कॉपी में लिखो।
ऋतिक राज कहाँ चला गया तुम? लिखा ही नहीं होगा। सर क्लास नहीं है। हैं? सर क्लास नहीं है। तो तुम्हारा वीडियो कहाँ है ऑन? सर उसके दिखाते हैं, बस लास्ट लिख रहे हैं। सब बात गया। सर ये देखिए। कहाँ दिख रहा है तुम? यस, 5 चीज इधर है, 5 चीज इधर है। स्ट्रीट लाइट फोर्स क्या है? ये स्ट्रीट लाइट फोर्स रेस्ट है कि मोशन है? सर रेस्ट। तो तुम उल्टा बना दिया है जी, पहले रेस्ट था ना। हैं? तुम उल्टा क्या लिखता था? है जी। लेफ्ट हैंडेड है क्या? हैं? नो सर। तो पहले क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। वो लेफ्ट में लिखना था तो तुम उसको राइट में लिख दिया। चलो हटाओ। और कौन लिखा? पृथ्वी संगम। कौस्तुभ दिखाओ तो तुम क्या सर किया, दिखाओ। कहाँ दिख रहा है कॉपी? तुमने रेस्ट में लीव्स कहाँ से आ गया जी? तुम्हारे पास जो दिया हुआ है एक्टिविटी 6 में वही ना काम करना है जी। है? अपने मन से लिख दिया है जी। सर है लीव्स Leaves- ऑन अ यस ट्री। सर है। तो पूरा लिखेगा ना कि सीधे लीव्स लिखेगा जी? शॉर्टकट तरीका अपनाता है। पूरा ना लिखेगा, पूरा लिखो। यस सर लिख रहे हैं सर। सर लिख लिए। ओके थैंक यू। दूसरे को चांस दो, लिखने दो। तो आपका होमवर्क रह गया रेस्ट और मोशन को डिफाइन करके याद करके लाना है। ओके पानी